Geoffrey Chaucer is the most celebrated poet of medieval age or later part of medieval age. He was born in 1343 and died in 1400. He was buried in the Poet Corner of Westminster Abbey. That's the famous graveyard. His works include Troilus and Cressida, The Parliament of Fowl, and his masterpiece, The Canterbury Tales. Prologue to the Canterbury Tale is mostly included in syllabus, and everyone knows prologue means introduction. That prologue introduces the storyteller who will relate tales in their journey to Canterbury, and characters which Chaucer introduces appear as universal as well as medieval. Medieval because they represent their age, they represent their contemporary society, and universal because they are beyond time and space. His characters have individual traits as well as representation of their class. Prologue introduces the most significant classes of that time. For instance, knightly class or chivalry class. That class is known for its bravery, courage, and the art of war. यानी एक ऐसा तबका है जो अपनी बहादुरी की वजह से जाना जाता है, और इसकी सबसे बेस्ट रिप्रेजेंटेशन नाइट का कैरेक्टर है. नाइट के अलावा नाइट, सन, स्क्वायर और उनका सर्वेंट ह्यूमन इस क्लास में फॉल करते. That class represents one of the significant medieval trait of chivalry, bravery. Second class, which is shown in this prologue, is ecclesiastical class or religious class. That is represented by characters like friar, monk, prioress, summoner, partner, Oxford clerk and parson. ये सब मजहबी किरदार हैं, एक्लेसियस्टिकल क्लास की रिप्रेजेंटेशन करते हैं. इसमें एक करप्ट फ्रायर है, हेडोनिस्ट, मैक्विस्टिक मंक है, हिपोक्रेट, अफेक्टेशन एंड मैनर कॉन्शियस प्रायरस है, जो अपनी ह्यूमिलिटी और क्रिश्चियन वैल्यूज को कंप्रोमाइज करती है. समनर है, who makes the people fool. पार्टनर है, ऑक्सफोर्ड क्लर्क है. ऑक्सफोर्ड क्लर्क इज अ पॉजिटिव कैरेक्टर एंड he is true to his religion and is learning religious education as well as philosophy. Parson is also the village priest and very honorable, devoted, committed Christian in this prologue. यानी ज्यादातर तो करप्ट रिलीजियस क्लास सामने आती है, लेकिन कुछ पॉजिटिव कैरेक्टर भी हैं, जैसे ऑक्सफोर्ड क्लर्क या पार्सन का कैरेक्टर. इसी तरह सार्जेंट ऑफ लॉ का कैरेक्टर है, दैट शोज कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन लॉ एंड चर्च.
There is another class which is agrarian class. Agrarian class is represented through three characters. Franklin, who is known for his hospitality, land, drinking or wine drinking, and he is very much conscious of his social image. Quick in quarrels, फ्रैंकलिन ऐसे तबके को जाहिर करता है जो फ्यूडल क्लास को रिप्रेजेंट करता है। उसका पॉजिटिव ट्रेड हॉस्पिटैलिटी है, बल्कि एक्स्ट्रावेगेंट हॉस्पिटैलिटी, और नेगेटिव ट्रेड्स में उसका क्विक टेम्पर होना, शॉर्ट टेम्पर होना है। रीव उसका मैनेजर ऑन लैंड है, जबकि प्लोमैन एक वर्कर है, किसान है, और ये तीनों जो है एग्रीकल्चरल सोसाइटी के तीन पिलर्स के तौर पर हमारे सामने आते। वाइफ ऑफ बाथ, another character which has only one, you can say, representation, and she represents those women who are fallen women, who lose their chastity, virginity, or who are known for, you can say, extramarital affairs, and because of their guilt they love to practice religiosity. ऐसी ख़वातीन, ऐसी औरतें जो अपने गुनाहों के पछतावे में हज उम्रे करती हैं या दुआएं तस्बीहें पढ़ती हैं, किसी मुकद्दस मकाम की जाके ज़ियारत करती है, शी इज़ वाइफ ऑफ बैथ। एंड बैथ इज़ वेरी स्कैंडुलस टाउन इन इंग्लैंड। नाम नहीं बताया गया, बल्कि इलाका ही बताया गया कि किस तरह की शोहरत हुई। होस्ट इसका सेंट्रल कैरेक्टर है, हिज नेम इज हैरी बेली। हैरी बेली जो है वो टबार्ड इन का मालिक है, जो साउथ वर्क में है, और यहाँ पर ये सारे पिलग्रिम्स इकट्ठे हुए थे और ये जा रहे थे सेंट थॉमस बैकेट के श्राइन पे, जो कि कैंटरबरी में है। होस्ट कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कराता है, उनकी इंडिविजुअल ट्रेड्स को, उनकी फिजियोनॉमी या लुक्स को, अपीयरेंस को बताता है, और उनकी क्लास रिप्रेजेंटेशन शेयर करता है। That's host who is introduced in, you can say, sympathetic tone. He is not ridiculed at all, he is honored. One reason is that he is host, and second, probably he is affording a feast and honoring those who will relate the best tale. जो सबसे अच्छी कहानी सुनाएगा उसको, क्योंकि होस्ट की तरफ से एक बैंक्वेट ऑफर किया गया है, लिहाजा इस वजह से भी होस्ट को थोड़ा ऑनरेबल ट्रीटमेंट किया। एक्चुअल प्लान ये था कि 29 पिलग्रिम्स थे, और अगर पोइट और हैरी बैली को इंक्लूड किया जाए तो ये 31 होंगे, और हर कोई जो है वो 2 टेल्स जाते हुए 2 टेल्स वापसी पे सुनाएगा। बट द प्लान वाज नॉट मटेरियलाइज्ड एंड टेल्स आर फ्यूअर इन नंबर। These tales, and particularly prologue to the Canterbury Tales, show a clash of older and new values. Older values are questioned and new values are affirmed.
यानी पुरानी इकदार पे सवाल उठाए जाते हैं। ओल्डर वैल्यूज स्टैंड फॉर बिलीफ और क्रिश्चियन बिलीफ, एग्रीकल्चरल सेटअप, हायरार्की and dominance of ecclesiastical or religious class. Emerging classes that are mentioned in prologue are working class, and there is a desire to change religion, present counter ideas, and show some doubt to these practices. Chaucer is thought a realist writer because his work presents a sense of contemporariness, क्योंकि उसके जो वर्क्स हैं उसमें एक कॉन्टेम्परेरी लाइफ का एक हवाला, स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन मिलती है। सो ही इज अ रियलिस्ट राइटर। ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन, जिसका भी मैंने पहले जिक्र किया, एंड ही इज आल्सो एडमायर्ड फॉर द यूज ऑफ आयरनी एंड ह्यूमर। As for pilgrims are considered, pilgrims who are going to have a tribute to Saint Thomas Becket, ये सारे pilgrims जो हैं ये अपनी जमाने और अपने तबकों की नुमाइंदगी के साथ साथ एक यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन का, हर दौर के इंसानों में इसी तरह के किरदार है। कोई बहादुर है, कुछ मस्ती है, कुछ बड़े मेहनती हैं, कुछ जो है वो कुक की तरह है, कुछ जो है वो शिपमैन की तरह है, कुछ जो है वाइफ ऑफ बात की तरह है, कुछ ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं आज भी हम अपने दाएं बाएं इन कैरेक्टर्स को देख सकते हैं। इंडियन और पाकिस्तानी सोसाइटी में भी उसी तरह देख सकते हैं जिस तरह से आज से तकरीबन 6-7 सदियां पहले जो है इंग्लैंड में देखा गया। So that is the universality of their character. These characters show projection of 7 deadly sins, यानी बाइबल मुकद्दस में जो 7 इंसान के बड़े गुनाह बताए गए हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन भी इन किरदारों में हम देख सकते हैं। किसी में प्राइड है, किसी में कोविचियसनेस है, किसी में रैथ या एंगर है, कोई लेचरी का विक्टिम है, कोई ग्लटनी का विक्टिम है, और कोई स्लॉथ यानी आइडलनेस का शिकार है। तो और ये गुनाहों के मारे हुए इंसान ये समझते हैं कि हम जब किसी दरबार पर, किसी बाबे के मज़ार पे जाएंगे तो वहां बख्शे जाएंगे। हम सब समझ सकते हैं कि हम क्या सोचते हैं और हमारी सोच क्या, और हमारे आसपास डिफरेंट रिलीजन के लोगों की भी सेम सोच है या सिमिलर सोच है। यहाँ मिस्टेकनली स्पेलिंग मिस्टेक है, ये PFOWL है जो कि यहाँ आपको गलत नजर आ रहा है। स्लाइड्स एक्चुअली मैंने नहीं बनाई तो थोड़ा सा इनमें इश्यूज हैं। Contemporary writer of Geoffrey Chaucer's have only one significance, that they are compared and contrasted with Chaucer to assert relevance and significance of Geoffrey Chaucer. William Langland is the most important contemporary. He wrote Pies, that is not Pies, that Piers, Piers, Piers Fromen, and that is a satirical work of poetry, and that work is appreciated for its narrative style, narrative poetry. Canterbury Tale is also narrative, and for its satirical tone. John Goer, who wrote Confessio Amantis, translated as a lover's confession, because Confessio Amantis is Italian phrase, and that is thought an encyclopedia of love, and it is admired. Some people believe that it's about love, and others believe that it's about irony of love.
John Lydgate, he is a scholar and Chaucer's contemporary, known for his work The Fall of Princes. That's a historical account and influenced by Italian poet Petrarch, also called Petrarchio, with variant of Spanish. So with this, I conclude medieval age. If anyone has a question about Chaucer, please ask. Yes, sir. The Renaissance age is the most important age of history, or history of knowledge, history of arts and literature. That is, you can say, the hallmark of second millennium. जैसे फर्स्ट मिलेनियम की अगर हम कोई बहुत मेजर ट्रेड बताना चाहें तो हम कह सकते हैं कि रिलीजन फर्स्ट मिलेनियम की एक बड़ी कंट्रीब्यूशन के तौर पर सामने आता है. सेकेंड मिलेनियम, दैट इज द मिलेनियम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, and that is the anthropocentric world. Anthropo mean human being. So human being gets center or focus in that age, which is called Renaissance age or Renaissance of Europe. ये एक्चुअल में तो पूरे यूरोप की रेनेसांस थी, एंड यूरोपियन रेनेसांस इज थॉट फ्रॉम 14th century to mid 17th century. English Renaissance is thought from 1485 to 1660. अभी कल ही मैंने कहा कि रेनेसांस समेत कोई भी एज ना तो कोई उसका एग्जैक्ट ईयर है बिगिनिंग का ना एंड, लेकिन जो रिलायबल सोर्सेज हैं वो जिन डेट्स को प्रेफर करते हैं, जैसे मैंने जो डेट्स हैं ज्यादातर वो द रूटलेज हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से जो है वो ली है और उन्हीं को ज्यादा जो है वो प्रेफर की. एक रेनेसांस के अंदर एक पॉलिटिकल पीरियड चल रहा है और उस पॉलिटिकल पीरियड की वजह से उसको कई पॉलिटिकल लेबल के साथ भी याद रखा जाता है. पॉलिटिकल पीरियड को इसलिए जानना एक्यूरेट और एग्जैक्ट होता है कि कब कोई बादशाह इक़्तिदार में आया और कब तक वो इक़्तिदार में रहा. इंग्लिश रेनेसांस को अगर हम देखें तो रेनेसांस एज में जो इंग्लैंड में रूलर रहे हैं उनमें सबसे पहले हेनरी सेवंथ है, और ये 1485 इंग्लिश हिस्ट्री का वो टर्निंग पॉइंट है जब कहा जाता है कि 100 साल जंग जो है वो खत्म हुई, जिसको हाउस ऑफ यॉर्क और हाउस ऑफ लैंकास्टर, दो जो बड़े खानदान थे, शाही खानदान थे, उनके दरमियान होने वाली वार ऑफ रोजेस जो है वो खत्म हुई और हेनरी सेवन जो है उससे टूडोर डायनेस्टी का आगाज हुआ और हेनरी सेवन जो है वो इक़्तिदार में आया. He remained ruler from 1485 to 1509. That is the ruling span of Henry VII. Next and most significant king of Renaissance age is Henry VIII, who ruled England from 1509 to 1547. Meanwhile, there were clashes of king and church, obviously about marriage of King Henry VIII and his desire for male ancestor to throne. Male successor to throne ये एक विश थी जो पूरी नहीं हो रही थी और इस वजह से हेनरी VIII को शादियां करनी पड़ी. सिस्टर इन लॉ से मैरिज को वायलेट करना पड़ा. मोनेगमी यानी एक औरत से शादी के कानून को तोड़ना पड़ा. पोप के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुई और अल्टीमेटली जो है बाद में रिकॉन्सिलेशन भी हुई, लेकिन उस दौरान जो है रिफॉर्मेशन का आगाज इंग्लैंड में, जैसा कि जर्मनी में मार्टिन लूथर रिलीजन को रिफॉर्म करने का आगाज कर चुका. एडवर्ड सिक्स, Henry VIII's son, he came into power in 1547 and he ruled till 1553.
Then Henry VIII daughter, Mary First, who was actually Catholic in belief, she ruled for 5 years from 1553 to 1558. We can say that's the making of Renaissance age in England. ये rise हो रहा है Renaissance age का, and climax of Renaissance age can be seen in Elizabethan and afterward Jacobean period. Elizabeth first and King James first के जो दौरे इक़्तिदार हैं वो असल में रेनेसांस की बेस्ट रिप्रेजेंटेशन। इसी में हम यूनिवर्सिटी विट्स को देखते हैं, इसी में एडमंड स्पेंसर जैसा शायर सामने आता है, इसी में मेटाफिजिकल पोइट्स तो जॉन डन है, इसी में फ्रांसिस बेकन की प्रोज है, इसी में सर वॉल्टर रेले के ट्रेवलॉग्स हैं, इसी एज में विलियम शेक्सपियर और बाकी यूनिवर्सिटी वेट्स मौजूद हैं। फिर किंग जेम्स के जमाने में खास तौर पर बेन जॉनसन है। तो ये जब आप कई दफा इस तरह के लेबल सुनते हैं, एलिजाबेथन एज, जोकेबियन एज, ये सिर्फ सब पार्ट है रेनेसांस एज। रेनेसांस एक थीमेटिक डिवीजन है और उसके अंदर ये पॉलिटिकल डिविजन्स की गई हैं जिस जिस एज में किस रूलर ने हुकूमत की। चार्ल्स फर्स्ट, who ruled from 1625 to 1649, that period is also called Caroline period, and वो जमाना जिस वक्त इंग्लैंड में बादशाहत जो है नहीं रही, स्पेशली फ्रॉम 1649 टू 1660, क्योंकि 1649 में चार्ल्स फर्स्ट को एग्जीक्यूट किया गया था, हैंग कर दिया गया था, और चार्ल्स फर्स्ट को फांसी देने के बाद वहाँ नेक्स्ट जो 11-12 ईयर्स हैं उसमें कॉमनवेल्थ पीरियड रहा, यानी कि लॉर्ड क्रोमवेल ने रूल किया और किंग का टाइटल यूज नहीं किया। इस एज में प्यूरिटन रूल जो है वो था, प्यूरिटन वर वेरी मच स्ट्रॉन्ग इन दैट एज। तो जब हम रेनेसांस का जिक्र करते हैं तो हमारे ज़हन में उसके कुछ पॉलिटिकल रेफरेंसेस होने चाहिए कि जिनकी बेस पर रेनेसांस के सब टॉपिक्स एलिजाबेथन, जैकोबियन या कैरोलाइन पीरियड या कॉमनवेल्थ पीरियड जो है वो इमर्ज कर। पीक ऑफ रेनेसांस एज और क्लाइमेक्स ऑफ रेनेसांस एज इज एलिजाबेथन एज।